কথায় আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধেটা হয়। আজকের এই খবর দেখে নিশ্চয় ভারতের পিলে চমকে গেছে। মানে রাজনীতির সমীকরণটা বোঝা বড় কষ্টকর। যাই হোক, চলতি এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক একটা সংলাপ হতে যাচ্ছে, আর বলা হচ্ছে 12 বছর। इस अप्रैल के महीने में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात और दोस्तों बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री टू मिलिट्री भी बड़े अच्छे जो रिलेशन है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हो चुके हैं 1971 के बाद। और फिर देखें कि जो ट्रेड है वो भी शुरू हो चुकी है दोनों मुल्कों के दरमियान। और अब बात है सियासत की, अब बात है पॉलिटिकल जो टाइज हैं वो उसको बेहतर करने की। अब उसके ऊपर भी अब बड़ी मुलाकात होने जा रही है और उसमें बात होगी सेवन सिस्टर की, वेस्ट बंगाल की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, हिंदुस्तान चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस कभी भी ठीक ना हो, और उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी को कभी भी मजबूत नहीं होने दिया। शेख हसीना को बिठा के रखा और फिर उनको ये कहा कि आप अपनी आर्मी को मजबूत ताकतवर नहीं बनाना। क्यों? एक तरफ चाइना है, पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ ऊपर से बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश की आर्मी भी मजबूत हो जाती है तो फिर हिंदुस्तान को और ज़्यादा मुसीबत। अब उनको सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और एक बड़ी मीटिंग है, और ये सियासी मीटिंग है, सियासी बैठक है, और पॉलिटिकल जो टाइज हैं अब वो बेहतर होने जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। ये ताल्लुकात तकरीबन 12 साल बाद ये मीटिंग होने जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार, वो बांग्लादेश के सफ़र पर आ रहे हैं इसी महीने अप्रैल में। अब दोस्तों, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा चिंता है, लेकिन पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हैं वो मिलिट्री टू मिलिट्री तो बेहतर हैं, फिर ट्रेड ओपन हो चुकी है, लेकिन अब ज़रूरत थी पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, वो थी सियासी, पॉलिटिकली, और अब उसके ऊपर भी ज़ोर दिया जा रहा है। तो वो उस मुल्क के साथ उसको अच्छा समझा जाता है। अगर आपके सियासी रिलेशन ताल्लुकात अच्छे हो ना, वो समझा जाता है कि बड़ी अच्छी बात है भाई। अब इसी के ऊपर नईम साउथ कोरिया की ये बड़ी अच्छी वीडियो है दोस्तों, कमाल का उन्होंने एनालिसिस किया। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3 2 1 एंड क्यू। কথায় আছে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধেটা হয়। এই মুহূর্তে বাঘ বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি, ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় ভয়ের জায়গাটা হচ্ছে পাকিস্তান। বিশেষ করে 5ই আগস্টের পর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সরকার বা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভারত বিরোধী বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেও এর পাশাপাশি পাকিস্তানের পক্ষে একটা পজিটিভ জনমত এদেশে তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়িক লেনদেনটাও শুরু হয়েছে। কয়েক রেকর্ড ভেঙে আমরা অনেক ব্যবসা বাণিজ্য দেখছি। তবে সম্পর্কটা কি ওই জায়গায় থাকবে নাকি সামনের দিকে যাবে? আজকের এই খবর দেখে নিশ্চয় ভারতের পিলে চমকে গেছে। রাজনীতির সমীকরণটা বোঝা বড় কষ্টকর। যাই হোক, চলতি এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক একটা সংলাপ হতে যাচ্ছে, আর বলা হচ্ছে 12 বছর পর। এর আগে সর্বশেষ 2012 সালে আওয়ামী লীগের আমলে হয়েছিল, কিন্তু যার যার জায়গা থেকে রাজনৈতিক জায়গাগুলো সবারই সম্ভবত ঠিক ছিল, কূটনীতিও ঠিক ছিল। আপনার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ডেইলি পাকিস্তান। তাদের গণমাধ্যমটি বলছে 2012 সালে সর্বশেষ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংলাপ হয়েছিল। এবারের সংলাপটা হবে ভিন্ন রকম। কেন? ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিকল্পনাটা ঠিক করা হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান উভয় দেশই সম্পর্ককে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা চালাচ্ছে। এই রাজনৈতিক সংলাপ সেটিরই একটি অংশ, যেটির লক্ষ্য হল বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিকরণ করা। তবে পাকিস্তান যদি সরি বইলা ফেলে বাংলাদেশের কাছে, মিনিমাম লেভেলে এদের প্রতি আমাদের হয়তো একটা সিম্পেথি আসতে পারে। দেখেন, ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে আপনি পাকিস্তানের সাথে ব্যবসা করেন, কোনো সমস্যা নাই। গ্লোবালি দুইটা দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বেলায় পাকিস্তানকে একটু সরি বলা উচিত। 100% সরি বইলা, তাহলে হয়তো একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের প্রতি বাঙালির আসলেও আসতে পারে।
তো এই সংলাপে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দিবেন দেশটির পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালোচ। মানে এই বৈঠকটা সরকারি পর্যায়ে হতে যাচ্ছে, মানে এই মুহূর্তে যেহেতু সরকারে ডক্টর ইউনুস আছেন, তার সরকার বনাম পাকিস্তানের সরকার। গেল কয়েকদিন আগে আমাদের ডক্টর ইউনুসকে সম্ভবত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ফোন দিয়েছিলাম। আবার ডক্টর রুনালা মানে আমাদের শিল্পী রুনালালার কথা তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, না সামহাও এখানে এই আলোচনাটাও ছিল। যাই হোক, তো সংলাপটা কিসের বেসিসে হবে বা কেন হবে? বলা হচ্ছে দুই দেশের সম্পর্ককে জোরদার করা, যৌথ মিনিস্ট্রিয়াল কমিশন পুনর্বহাল করা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইস্যুতে সমন্বয় বৃদ্ধিতে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির পরিকল্পনা এই সম্মেলনে আসলে জোর দেওয়া হবে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से नईम साउथ कोरिया साहब कह रहे थे कि जहाँ पर रात होती है वहाँ पर सहर भी होती है। और ये कहावत है कि अब देखें बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो टाइज़ हैं वो बेहतर हो रहे हैं इस मंथ में, क्योंकि पॉलिटिकली मीटिंग होने जा रही है बड़े पैमाने पर 12 साल बाद, और इंडिया को इससे बहुत ही ज़्यादा खौफ है, डर है, और इसी वजह से उनका मीडिया चीखें मार रहा है। और फिर दोस्तों देखें कि 12 साल बाद, बड़े अरसे के बाद अब ये डायलॉग स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले शेख हसीना को किस तरह से भारत ने रोक रखा था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के आपने रिलेशन बेहतर नहीं करने, उनके साथ रिश्ता इसी तरह तोड़ के रखना है, पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ता नहीं करना। लेकिन जैसे ही हसीना की हुकूमत गई और नई हुकूमत आई, उन्होंने महसूस किया कि नहीं, हम कब तक दादागिरी के अंडर काम करते रहेंगे हिंदुस्तान की। हमने आज़ाद बात करनी है, आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है, अपने मुल्क को सारी दुनिया के साथ कनेक्ट करना है। किसी एक मुल्क की कॉलोनी हमने नहीं बनना, किसी एक मुल्क की हमने दादागिरी के नीचे काम नहीं करना। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बांग्लादेश की हुकूमत का। और फिर देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, चाहे मिलिट्री टू मिलिट्री, आर्मी के आप देखें कि कुछ ऑफिशियल्स पाकिस्तान में आए और इसी तरह पाकिस्तान के बांग्लादेश में गए, और फिर जो ट्रेड है वो ओपन हो चुकी है, कार्गो शिप जा रही हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश से पाकिस्तान। और इस तरह से फिर अब ज़रूरत थी कि सियासी तौर पर पॉलिटिकली डायलॉग की, और वो भी डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इसहाक डार, वो जा रहे हैं अब बांग्लादेश में 24-25 आई थिंक इस अप्रैल में मीटिंग है, ये जो मुलाकात है, ये सफ़र है बांग्लादेश का। उसके बाद जो नईम साउथ कोरिया साहब कह रहे थे कि जो वेस्ट बंगाल और फिर जो 7 सिस्टर है, ये भी डिस्कशन में इस टॉपिक को भी वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी बात होगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।